everyone. Online classes, class 9th, subject geography, chapter 2, physical features of India. भारत का भौतिक स्वरूप. You have already learned that India is a vast country with varied landforms. What kind of terrain do you live in? If you live in the plain, you are familiar with the vast stretches of plain land. In contrast, if you live in hilly region, the rugged terrain with mountain and valley are common features. In fact, our country has practically all major physical features of the earth. Example: mountains, plains, desert, plateaus and आइसलैंड. जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलकृतियों वाला एक विशाल देश है. आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र में निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भलीभांति परिचित होंगे. वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार के भू आकृति पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह. आप यह सोच रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ कैसे बनी. अब हम अपने भारत की मुख्य भू आकृतियों की विशेषताएं एवं उनकी संरचना के बारे में जानेंगे. The land of India display great physical variation geological. The peninsular plateau constitutes one of the ancient landmass on the earth's surface. It was supposed to be one of the most stable land block. The Himalayas and the North Plains are the most recent landform. From the viewpoint of geology, Himalayan mountain from an unstable zone. The whole mountain system of Himalayas represents a very youthful topography with high peak, deep valley and fast flowing river. The northern plains are formed of alluvial deposit. The peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and wide valley. भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है. भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीप पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीन भाग है. इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इस गलत साबित कर दिया है. हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में ही बनी स्थलाकृतियाँ हैं. भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है. हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ हैं. उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं. प्रायद्वीप पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना होता है. मेजर जियोग्राफिक डिवीजन, मुख्य भौगोलिक वितरण. द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुपेड अंडर द फ्लोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन. फिगर 2.2. अब भारत के भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है. देखिए, द हिमालयन माउंटेन, हिमालय पर्वत श्रृंखला. द नॉर्थर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान. द पेनिसुलर प्लेटो, प्रायद्वीप पठार. द इंडियन डिजर्ट, भारतीय मरुस्थल. द कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान. द आइसलैंड, द्वीप समूह. द हिमालयन माउंटेन्स, हिमालय पर्वत. द हिमालयस geological young and structurally full mountain structurally over the northern borders of India. These mountain range with run in a west-east direction from the Indus to the Brahmaputra. The Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. They form an arc which cover a distance of about 2400 km. Their width varies from 400 km in
Kashmir to 150 km in Arunachal Pradesh. The altitudinal variation are greater in the eastern half than those in the western half. The Himalaya consists of three parallel ranges. In its longitudinal extent, a number of valleys lie between these ranges. The northernmost range is known as the Great or Inner Himalayas or the Himadri. It is the most continuous range, consisting of the loftiest peak with an average height of 6,000 meters. It contains all prominent Himalayan peak. अब देखिए आप हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। यह 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली हैं, अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर से 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। सम हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयस। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर: माउंट एवरेस्ट नेपाल, कंचनजुगा इंडिया, मकालू नेपाल, धौलागिरी नेपाल, नंगा पर्वत इंडिया, अन्नपूर्णा नेपाल, नंदा देवी इंडिया, कामेट इंडिया, नमचा बरुआ इंडिया, गुरुला मधांता नेपाल. The folds of the Great Himalayas are asymmetrical in nature. The crores of this part of Himalayas is composed of granite. It is perennially snow-bound, and a number of glaciers descend from this range. महान हिमालय के विलय की प्रकृति असीमित है. हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट का बना होता है. यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी होती है तथा इससे बहुत सी हिमानियाँ का प्रवाह होता है. द रेंज लेइंग ऑफ टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फ्रॉम्स द मोस्ट rugged mountain system and is now as Himachal or Lower Himalayas. The range are mainly composed of highly compressed and laterite rocks. The altitude varies between 3,700 and 4,500 meters and the average width is of 50 kilometers. While the Pir Panjal range from the longest and the most important range, the Dhaila, Dhar and the Mawat range are also prominent ones. This range consists of the famous valley of Kashmir, the Kangara and Kullu valley in Himachal Pradesh. This region is well known for its hill station. अब हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम में है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है. इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है. इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी और तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है. धौलाधर
एवं महाभारत श्रृंखलाएँ भी महत्वपूर्ण हैं। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए भी जाना जाता है। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस इज कॉल्ड द शिवालिक। दे स्टैंड ओवर ए विड्थ of 1050 kilometers and have an altitude varying between 900 and 1100 meters. These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalaya range located further north. These valleys are covered with thick gravel and alluvium. The longitudinal valley lying between Lesser Himalaya and the Shivaliks are now as Dun, Dhara Dun, Kotli Dun and Patil Dun are some of the well-known dunes. हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच होती है। यह श्रृंखलाएँ उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई जाती हैं। आज संपीड़ित अवसादों से बनी होती हैं। यह घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई होती हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवता घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। Beside the longitudinal division, the Himalayas have been divided on the basis of region from west to east. These divisions have been demarcated by river valley. For example, the part of Himalayas lying between Indus and Satluj has been traditional now as Punjab Himalayas, but it is also now regionally as Kashmir and Himachal Himalaya from west to east respectively. The part of the Himalayas lying between Satluj and Kali river is now as Kuma on Himalayas. The Kali and Tista river demarcate the Nepal Himalayas, and the part lying between Tista and Dihang river is now as Assam Himalayas. There are regional names also in these bold categories. Find out some regional names of the Himalayas. अब इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम के पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर ही भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाएं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंध के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तिस्ता नदी नेपाल हिमालय का एक तिस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम आप पता करिए। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयस बियॉन्ड द दिहांग गुर्ग and the Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. They are known as the Purvanchal or the eastern hills and mountains. These hills running through the northeastern state are mostly composed of strong sandstones, which are sedimentary rocks covered with dense forest. They mostly run as parallel range and valley. The Purvanchal comprises the Patkali Hills, the Naga Hills, the Manipur Hills and the Mizo Hills. अब ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा
पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थर से और सादी शैल से बनी होती हैं। यह घने जंगलों से में ढकी होती हैं तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली होती हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजोरम तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल होती हैं। द नॉर्थर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान। द नॉर्थर्न प्लेन्स हैज बीन फॉर्मेड बाय द interplay of the three major river systems, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra, along with their tributaries. This plains is formed of alluvial soil. The depositions of alluvium in the West Basin laying at the foothills of the Himalayas over millions of years formed this fertile plains. It spread over an area of 7 lakhs square kilometers. The plains being about 2400 kilometers long and 240 to 320 kilometers broad, is a densely populated geographic division with a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate. It is agriculturally a productive part of India. The rivers coming from northern mountain are involved in depositional work in the lower courses. Due to gentle slope, the velocity of the river decreases, which result in the formation of riverine island. अब उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों से सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बनी होती है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इसे उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विचार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा होता है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप नदियाँ द्वीपों का निर्माण होता है। यह नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। इन धाराओं को वितरकियाएँ कहा जाता है। The rivers in their lower courses split into numerous channels due to the deposition of silt. These channels are now as distributaries. The northern plains is broadly divided into 3 sections. The western part of the northern plains is referred to as the Punjab Plains, formed by the Indus and its tributaries. The larger part of this plains lies in Pakistan. The Indus and its tributaries, the Jhelum, the Chenab, the Ravi, the Vij and the Satluj originate in the Himalaya. This section of the plains is dominated by the Doabs. उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपद्रवों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान में पश्चिम भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां के द्वारा बनाए गए इस मैदान को बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग को दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। द गंगा प्लेन्स स्टैंड बिटवीन घाघर and Tista rivers. It is spread over 2 states of North India, Haryana, Delhi, UP, Bihar, partly Jharkhand and West Bengal. To its east, particularly in Assam, lies the Brahmaputra Plains. गंगा के मैदान का विस्तार घाघर तथा तिस्ता नदियों के बीच
है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। The northern plains are generally described as flat land with no variation in its relief. It is not true. These West Plains also have diverse relief features. According to the variation in relief features, the northern plains can be divided into 4 regions. The river, after descending from the mountain, deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 km in width, lying parallel to the slope of the Shivaliks. It is known as Bhabar. All the stream disappear in this Bhabar belt. South of this belt, the streams and river emerge and create a wet, swampy and marshy region known as Tarai. This was a thickly forested region full of wildlife. The forests have been cleared to create agricultural land and to settle migrants from Pakistan after Partians locate दुधवा नेशनल पार्क इन द रीजन। अब उत्तरी मैदानों की व्याख्या समांतर इसके उच्चावाचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है कि इस विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियाँ भी विविधता है। आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों के 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुठिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भाबर के नाम से भी जाना जाता है। सभी सरिताएँ इसे भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी की दक्षिण में ये सरिताएँ एवं नदियाँ पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों में भरा घने जंगलों का क्षेत्र है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय पार्क के स्थित ज्ञात कीजिए। The largest part of the northern plains is formed of older alluvium. It lies above the floodplains of the rivers are present a trace-like features. The part of now as Bhagar. The soil in this region contain calcareous deposit locally now as Kankar. The younger deposit of the floodplains are called Khadar. They are renewed almost every year and so are fertile, thus ideal for intensive agriculture. उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुरानी जलोढ़ का बना है। वह नदी के बाढ़ वाले मैदानों के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भागर के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए यह उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। थैंक यू।